Yes, Yes, sir. sir. As you can see, Yes, sir. the new chapter which we are going to start today is Euclid's geometry or introduction to Euclid's geometry. So in this chapter, we are going to discuss some of the definitions given by Euclid's, some of the definitions, axioms, and postulates. So before we discuss first these definition, axioms, and postulate one by one, only few of them has to be discussed in our class. First of all, let me tell you that Euclid was a mathematician in Egypt. He was born in 325 BCE. He was born in 325 BCE and उन्होंने एक बुक लिखी और एक ट्रीटाइज लिखी. He wrote a treatise named as Elements, and Elements had 13 chapters, and each chapter was called a book. Each chapter was called a book actually. So in this he describes the basic understanding of geometry, the basic understanding of geometry he discussed in this, wherein he discusses that how to define a point. From the point we reach to the next dimension. If I join two points, I make a line, and a surface having various lines makes a surface. एक सरफेस कैसे बनता है? बहुत सारे लाइंस के उससे, और सरफेसेस से हमें एजिस मिले. ठीक है, एजिस कैसे मिले? एजिस बनाने से हमें एक सॉलिड शेप्स भी मिले, 2D और 3D दोनों तरह के शेप्स भी मिले हमको. तो ये एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की जानकारी उन्होंने हमें दी. एंड what is the difference between the important thing what is the difference between definition, axiom, and postulates? Definition means which is given by some generalization. Axioms means which can't be proved. Students, axioms can't be proved, they are taken as such and they are true, but it is very difficult for us to prove them. Actually, they are the axioms. Whereas the postulates, what do you mean by postulates? Postulates means which are the assumptions based on the obvious truths, and we can prove them. They are called the postulates. ठीक है, definitions, axioms, and postulates. So he gave the idea of point, line, plane, that is surface, and this thing was used to study space and solid shapes around us. Okay, whereas the axioms which he said, axioms क्या थे? Axioms ये थे कि जो एक सर्टेन प्रॉपर्टीज थे, किसी चीज के बारे में जानकारी सर्टेन प्रॉपर्टीज थी. ओके, तो if I read it out here from the screen here, you can see here uh, a solid has shape, size, position, and can be moved from one place to another. Its boundaries are called surfaces. अगर एक solid shape, अगर मान लीजिए एक क्यूब में बनाऊं, क्यूब इज ए सॉलिड शेप, और क्यूब इज ए सॉलिड शेप, तो each surface each of them is called a surface and it has boundaries 1 2 3 4. This face has 4 boundaries. So and they separate one part of the space from another and are said to have no thickness. ठीक है, surfaces की कोई thickness नहीं होती है. The boundaries of the surfaces are, it may be curved like in a sphere, it may be curved, or straight line like in cube, cuboid, etc. He considers 3 steps from solids to points. है ना? स्टेप्स क्या है कि सॉलिड्स कैसे बने हैं? सॉलिड्स बने हैं सरफेसिस से, सरफेसिस कैसे बने हैं? लाइंस से, लाइंस कैसे बने हैं? पॉइंट्स से बने हैं. तो इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन, दैट इज कॉल्ड अ डायमेंशन. ठीक है, सॉलिड, सपोज मैंने एक क्यूब का ही एग्जांपल लिया. एक क्यूब जो है सॉलिड है, वो 6 सरफेसिस से बना हुआ है. अगर मैं ऐसे लिख दूं कि वन क्यूब इज मेड अप ऑफ 6 सरफेसिस, तो अब हमारे पास डायमेंशन एक कम हो गई, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सरफेसेस कम होकर हमारे पास सरफेस आ गया. और हर सरफेस कैसे बना हुआ है? एवरी सरफेस इज मेड अप ऑफ लाइंस. अगर आप देखें, इफ यू सी अ क्लोथ, वीविंग ऑफ क्लोथ, कपड़े की
वीविंग जब होती है तो आप देखेंगे जो धागे होते हैं एक दूसरे से इतने इंटरवोवन होते हैं, इतने क्लोज होते हैं, तो वो हम कह सकते हैं कि दोज थ्रेड्स आर द लाइंस एंड these all lines combined together make a surface. As you can see in the figure here, they make up a surface. So what happens when the lines are near to each other? So they make a surface. So each surface is made up of lines. And how do we make lines? That when I join two points, that is the line. So these are the basic things, basic definitions given by Euclid in his book, One of the Elements. Some of them are given, not all. Only 7 are given in our syllabus. The एलिमेंट्स के बुक नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 में ही डिफाइंस द पॉइंट, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरफेस एंड प्लेन सरफेस. ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट वन और व्हाट नोट्स वी हैव टू राइट डाउन इन आवर नोटबुक? वी विल राइट ओनली दीज डेफिनेशंस ओनली. हम केवल इन डेफिनेशंस को लिख लेंगे. ठीक है, हमें इनको याद करना है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज होने वाली है. What is a point? It says a point is that has no part. A point is that has no part. Point क्या है? Point वो है जिसमें कोई part नहीं होता है. ठीक है, point is that which has no parts. अगर हम point की definition कहेंगे तो ये कहेगा point which has no part. Point जब हम दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं, इसका कोई part नहीं होता है. अब इसमें एक undefined term इस definition में रह गया, वो है part. Part क्या है वो उसने कभी नहीं बताया. ठीक है, उन्होंने ये चीज कभी नहीं बताई ये पार्ट को कैसे डिफाइन करें. तो अभी हम क्या कहते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन पॉइंट की क्या है? कोई बता सकता है पॉइंट की मॉडर्न डेफिनेशन? क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा. मॉडर्न डेज में हम पॉइंट की डेफिनेशन क्या देते हैं बेटा? एनी आइडिया, एनी वन ऑफ यू? व्हाट इज अ पॉइंट इन मॉडर्न डेज? व्हाट डू वी से अ पॉइंट? यस, हम ये जो कहते हैं ना, a point defines the location of any object or anything in a plane surface area. है, यही तो होता है. डेफिनेशन यही पढ़ी होगी क्लास 6 में आपने. yes or no students? are you there in the class? Yes, sir. है ना, डेफिनेशन यही तो है ना कि पॉइंट क्या होती है? पॉइंट इज दैट विच डिफाइंस द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस. है ना, आजकल तो हम ये कहते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यूक्लिड ने कौन सी डेफिनेशन दी थी. ये दी थी, आपको ये याद करना है. अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट. पहली डेफिनेशन उन्होंने ये बताई. पॉइंट के बाद वो लाइन पर आते हैं. तो लाइन कहता है अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ. लाइन की डेफिनेशन क्या दी? अ लाइन इज अ ब्रेथलेस, जिसकी कोई ब्रेथ नहीं है. अ ब्रेथलेस, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन की कोई ब्रेथ नहीं है. लाइन क्या है कहा उसने? अब देखिए एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता पाया ना लाइन की वो. उसने ये कहा कि भाई ये लाइन होती है. उसने ये कहा, ही सेड कि दैट दिस इज अ लाइन. ओके, दिस इज अ लाइन. ही सेड दिस इज अ लाइन, बट ही नेवर सेड कि दैट कि व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स वी मेक अ लाइन. ओके, तो पहली स्टार्टिंग जो है डेफिनेशंस की, उन्होंने ये कही कि पॉइंट तो ये होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है. लाइन क्या होती है? जिसमें ब्रेथ नहीं होती है. एक ऐसी लेंथ जिसमें कोई ब्रेथ नहीं है. अब आप देखेंगे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो इसमें आपके पास ब्रेथ है. ठीक है, अगर मैं एक लाइन बनाऊं तो इसमें कोई ब्रेथ नहीं है. तो ये उसने कहा कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. ठीक है, फिर उसने तीसरी बात की, उसमें इसके दिमाग में आया कि भाई ठीक है, लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ है, तो इसका बाद उसने ये कहा कि द एंड्स ऑफ द लाइंस आर पॉइंट्स. तो अब जो है द एंड्स ऑफ द लाइंस आर पॉइंट्स. तो अब लगभग लगभग डेफिनेशन के पास पहुंच गया. इन दोनों स्टेटमेंट से, इन दोनों डेफिनेशन से क्या चीज समझ में आ रही है? व्हेन वी जॉइन टू पॉइंट्स दे वी गेट अ लाइन. ठीक हो गया. उसने पहले डेफिनेशन ये कही, उसने पहले ये नहीं कहा कि दो पॉइंट्स को मिलाने में लाइन बनी. उसने कहा कि लाइन एक ऐसी होती है जिसमें कोई ब्रेथ नहीं होती है, ऐसी लेंथ होती है. फिर उसने नोटिस किया कि उस लेंथ के दोनों तरफ
दो पॉइंट हम लोकेट कर सकते हैं, या उसने ये कहा कि अगर एक लाइन है तो एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से को क्लोजली कनेक्ट करने पर एक लाइन बन जाती है। जैसे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं हम, तो बहुत ही ज्यादा क्लोज होने पर ये एक डार्क लाइन दिखाई देती है। तो दैट मीन्स व्हाट, अ लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स, वेरियस पॉइंट्स इंटरवोवन टुगेदर। ठीक हो गया, ये हम अभी कहते हैं, ये हम मॉडर्न डेज में कहते हैं, है ना। अच्छा, फोर्थ उसने क्या कहा, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं उन्होंने बताई अपनी बुक में, क्योंकि इसमें पहली पहली बार मैथ्स के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में इतनी बातें निकल के आ रही थी, लोगों ने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, एक मैथमेटिशियन ने ऐसा सोचा। तो अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इट लाइज, है ना। यू मे फील दैट इट इज अ बोरिंग वन, बट इट इज नॉट बोरिंग एक्चुअली, कि व्हेन वी आर लर्निंग द एंशिएंट थिंग, इन द एंशिएंट टाइम्स हाउ द थिंग्स वर देयर टू डिफाइन एक्चुअली। ठीक है, तो ये कहता है a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। वो कहता है, आई थिंक यही कहा है, देखिए, a straight line, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself। वही बात कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, वो बहुत सारे पॉइंट्स उस पर लाई होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन है। लाइन क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, neatly drawn and closely connected points if I join here like this, as you can see। So what is their closely connected point? So what is a straight line? Straight line lies itself on, which lies evenly with the points on itself। उसके ऊपर लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो इवनली, इवनली मीन्स बराबर डिस्टेंस पे एवरी पॉइंट इंटर क्लोज है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन वो है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। उसके ऊपर लाई करते हैं सारे पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स को मिला दो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। ठीक है, पॉइंट लाइन की डेफिनेशन। अब आप देखिए, ये तीन जो है, नंबर 2, 3 और 4 डेफिनेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ वन आप इसको पढ़ सकते हैं बेटा, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं फिफ्थ वाले को। यस, कैन एनीवन रीड दिस फिफ्थ वन? ओके, a surface is that which has length and breadth only। सरफेस क्या है जिसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ होती है। सरफेस, देखिए आपको ये लिखना होगा और याद करना होगा इनको आपने। ठीक है, एग्जैक्टली हम मॉडर्न डेफिनेशन नहीं बताएंगे, जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूक्लिड्स के पास से आए थे वो हमें एग्जैक्टली वैसा ही याद करना है। अ सरफेस इज दैट which has length and breadth only, which has length and breadth only। तो ये सारी चीजें, ये सारी डेफिनेशन कहाँ से आई, डेली यूज में, डेली यूज और डेली लाइफ से उन्होंने पता किया कि डेली लाइफ में ये चीज नोटिस करी और उन्होंने ये बताया कि आपने कभी कोई सरफेस देखा है जिसकी हाइट होती है? हैव यू सीन अ सरफेस हैविंग हाइट? आर यू देयर बच्चों? ठीक है, यस अगर सर। सरफेस है तो सरफेस केवल क्या है, आपकी 2 डायमेंशनल शेप है। सपोज मैंने एक सरफेस बनाया है, रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया, तो आप देख रहे होंगे कि सरफेस क्या है, उसमें केवल लेंथ और ब्रेड्थ ही आपको मिलेगी, हाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हाइट मिलेगी तो थर्ड डायमेंशन हो जाएगी, वो तो सॉलिड शेप बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, सॉलिड शेप बन जाएगा वो। तो सरफेस में केवल लेंथ और ब्रेड्थ होती है, लाइन में केवल लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है। तो बहुत सारी लाइनों को कनेक्ट करके सरफेस बना, कहने का मतलब ये है। A surface is that which has length and breadth only. The edges of a surface are lines। तो ये देख सकते हैं surfaces, ये सरफेस बनाया मैंने एक, इस सरफेस के जो एजेस हैं, ये 4 एजेस हैं, ये सब क्या है, ये लाइंस हैं। तो उसने ये कहा कि द प्लेन सरफेस,
अगर कोई प्लेन सरफेस बना हुआ है, ऐसा सरफेस है, इज अ सरफेस विच लाइज इवनली with the straight lines on it, with the straight lines on it. Just like we said, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. Similarly, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on it. तो अगर हम इंटर कनेक्टेड यानी कि इवनली मतलब बराबर डिस्टेंस पे, अगर इस तरह से हम बनाते जाएं, ठीक है, इस तरह से हम बनाते जाएं, अब तो मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूं लेकिन ये बहुत ही क्लोज होते हैं, तो ये सरफेस क्या है, लाइंस का एक कलेक्शन है, एक तरह से हम कह सकते हैं. बट इन हिज वर्ड्स ही सेड अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट. इवनली मतलब हर स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस जो है सेम है. एवरी स्ट्रेट लाइन इवनली ड्रॉन, एक्चुअली इवनली ड्रॉन मीन्स सबके बीच की डिस्टेंस इवन मतलब सेम होगी. ठीक हो गया. तो ये 7 डेफिनेशंस ही हमने डिस्कस करी. ठीक है. तो अब इसमें कुछ टर्म्स जो है अनडिफाइंड रह गए. ओके, इसमें कुछ टर्म्स अनडिफाइंड रह गए कि जैसे पॉइंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है जिसको हम डॉट से दिखाते हैं, या इसको डील करने के लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस बनाई या कुछ यूनिवर्सल ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ बताई उन्होंने, जिसको यूक्लिड्स एक्सियम कहा जाता है. जिसको क्या कहा जाता है, यूक्लिड्स एक्सियम. ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. एक्सियम्स, यूक्लिड्स एक्सियम्स. तो हमारे पास जो एक्सियम्स दी गई हैं, एक्सियम्स भी 7 दी गई हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. सम ऑफ द, है ना, एक्सियम्स आर गिवन हियर. दे मे नॉट be used in modern days, these definitions, but the modern day geometry, whatever the development has been there in the modern geometry, it is because of Euclid's geometry only. Because Euclid's geometry के जो एक्सियम्स पोस्टुलेट्स डेफिनेशंस थी, उनका एक रिटन प्रूफ, रिटन में लिखा गया था स्क्रिप्चर्स को. बुक्स, पहली रिटन बुक जो है मानी जाती है कि एलिमेंट्स ही एक ऐसा कलेक्शन ऑफ बुक्स था जो आगे चल के हम मॉडर्न टाइम पे भी जिनकी हेल्प से हमने मॉडर्न डेफिनेशन बनाई है. फॉर एग्जांपल पोस्टुलेट नंबर 5 जो है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन बनाने के में बड़ा काम आया है मॉडर्न टाइम में. ओके, ठीक है. एक्सियम्स को हम कल देख लें बेटा.